الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. ہمارا آج کا لیکچر کل کے لیکچر کی ہی کنٹینیویشن ہے. ہم لوگ کل پڑھ رہے تھے ڈفرینٹ تھیوریز ریگارڈنگ دا ریلیشن شپ بٹوین انکم اینڈ کنزمپشن, and we have described that we can understand this relationship with the help of the theories: absolute income hypothesis, relative income hypothesis, permanent income hypothesis, and life cycle hypothesis. Yesterday we have discussed about the absolute income hypothesis by Dr. Keynes. Today we will discuss the relative income hypothesis by James Dusenberry. James Dusenberry presented his theory in his book Income, Saving and the Theory of Consumers' Behavior. آمدنی, بچت اور صارف کا رویہ. اس میں جیمس ڈزنبیری نے بتایا کہ دو قسم کے نظریات ہیں جس کے ذریعے سے ہم اس تھیوری کو سمجھ سکتے ہیں, اس ریلیشن شپ کو سمجھ سکتے ہیں. ریلیٹیو انکم ہائپوتھیسس کو ہم دو تھیوریز کی صورت میں پڑھ سکتے ہیں. ریلیٹیو انکم ہائپوتھیسس نسبتی آمدنی کا نظریہ, اینڈ سابقہ آمدنی کا نظریہ یا پاسٹ انکم ہائپوتھیسس اور پریویس انکم ہائپوتھیسس. تو دا بیس آف دا جیمس ڈزنبیری واز دیٹ مین از دا سوشل اینیمل. اس نے یہ کہا کہ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے, یعنی اس کے سارے رویے, سارے بیہیویئرز کا انحصار ہوتا ہے جس سوسائٹی کے اندر, جن لوگوں کے اندر وہ رہ رہا ہوتا ہے. تو جیمس ڈزنبیری نے کہا کہ انفرادی طور پر کسی شخص کا صرف اس کی موجودہ آمدنی سے متاثر نہیں ہوتا, بلکہ اس کا انحصار اس معیار زندگی پر ہوتا ہے جس کا وہ عادی ہو چکا ہوتا ہے. یعنی جب انسان لوئر انکم گروپ میں رہ رہا ہوتا ہے, کم آمدنی والے طبقے کے اندر رہ رہا ہوتا ہے, تو اس کو عادت ہو جاتی ہے وہ کم آمدنی والے گروپ کے مطابق کم خرچ کر رہا ہوتا ہے, وہ اسی معیار زندگی کا عادی ہو جاتا ہے. لیکن جب صارف کی آمدنی بڑھ جاتی ہے, وہ اونچے آمدنی رکھنے والے لوگوں کے گروہ میں شامل ہو جاتا ہے یا ہائر انکم گروپ کے اندر شامل ہو جاتا ہے, تو پھر صارف کے لیے اس لیونگ سٹینڈرڈ کو چھوڑ کر نیچے لوئر لیونگ سٹینڈرڈ کے اوپر جانا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے صارف کوشش کرتا ہے کہ اگر فرض کریں وہ ہائر انکم گروپ میں آ جاتا ہے اور اب اس کی آمدنی کم ہو جاتی ہے, تو وہ کسی اور ریسورسز سے, اپنی پریویس سیونگز کے ذریعے سے یا کسی بھی طرح سے اپنے خرچ کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. لیکن وہ لوئر انکم گروپ کے اندر نہیں جانا چاہ رہا ہوتا, وہ اس چیز کو نہیں پسند کرتا کہ دوسرے لوگوں کو اس کے معیار زندگی کا اندازہ ہو. اس لیے وہ جس نظام زندگی کے اندر رہنے کا عادی ہو جاتا ہے, جس لیونگ سٹینڈرڈ کے اندر رہنے کا عادی ہو جاتا ہے, وہ اس سے کم لیونگ سٹینڈرڈ کے اندر نہیں جا سکتا. بس جیمس ڈزنبیری نے کیا کہا کہ جب آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے تو صرف میں اضافہ ہوتا ہے, لیکن جب آمدنی میں کمی ہوتی ہے تو صرف میں کمی ضرور ہوتی ہے, مگر نسبتی طور پر یہ آمدنی کم ہوتی ہے. when the income of the consumer will increase, he will increase his consumption. when the income of consumer will decrease, he will decrease the consumption, but in lesser amount, relatively less amount. So we can say when the income will increase, consumer will increase his consumption, but when the income will decrease, the consumer will not decrease his consumption as much. ٹھیک ہے, تو اس کا یہ جو رویہ ہوتا ہے یا اس کا یہ جو بیہیویئر ہوتا ہے, یہ اس کے اس ایٹیٹیوڈ کو شو کرتا ہے کہ وہ سوشل لائف کے اندر اپنی جو پوزیشن ہوتی ہے اس کو ضرور پیش نظر رکھتا ہے. وہ اپنے پیئر گروپ کا کیا مطلب ہوتا ہے, اس کی ایک کمیونٹی, ایک سوسائٹی, ہر ایک بندہ ایک مخصوص سوسائٹی, مخصوص کمیونٹی کے اندر رہ رہا ہوتا ہے, تو وہ اس کمیونٹی کو ضرور پیش نظر رکھتا ہے. یعنی اس کا رویہ اس کی سوسائٹی کے اندر رہنے والے لوگوں سے ضرور متاثر ہو رہا ہوتا ہے. تو اس سے ہم کیا انالیسس کر سکتے ہیں, اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کنزیومر کا کنزمپشن پیٹرن ہے, اس کا جو ایوریج propensity ٹو کنزیومر, دیٹ از فنکشن آف CIYI, that is average propensity to consume in the period I is the function of income, یعنی YI
एंड YM, यहाँ पर जो YM है दैट इज़ द एवरेज इनकम ऑफ हिज पीयर ग्रुप। ठीक है, अगर हम एक मखसूस कम्युनिटी के अंदर रहने लगे हैं तो जो हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगा टाइम पीरियड आई के अंदर, टाइम पीरियड आई की आमदनी के अलावा YM के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होगा। चेंज इन द YM क्या है? इनकम ऑफ द कम्युनिटी, इनकम ऑफ द पीयर ग्रुप, द सोशल ग्रुप जिसके अंदर कंज्यूमर रह रहा होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। इससे साबित क्या होती है? रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस क्या है? निस्बती आमदनी का नज़रिया क्या है? निस्बती आमदनी का नज़रिया ये है कि अगर सारिफ की आमदनी बढ़ जाती है तो वो अपनी आमदनी को बढ़ाता है, लेकिन जब कम हो जाती है तो वो अपनी आमदनी को इतनी ज़्यादा कम नहीं कर रहा होता। वो अपने सोशल स्टेटस, अपने पीयर ग्रुप की इनकम को ज़रूर देख रहा होता है। जो हमारी दूसरी क्या है जी? प्रीवियस और पास्ट इनकम हाइपोथेसिस, जो कि एक हिस्सा रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस का। इसमें जेम्स रोजनबेरी ने ये कहा कि देयर आर फ्लक्चुएशंस इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर। सारिफ की आमदनी में दौरी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जब सारिफ की आमदनी में दौरी उतार चढ़ाव आते हैं तो सर्फ़ खर्च का इन्हिसार सिर्फ आमदनी की मौजूदा सतह पर नहीं रहता, बल्कि माजी में हासिल करदा आमदनी के बुलंद तरीन मयार पर होता है। जिस घराने में, या ऐसा घराना जिसकी आमदनी माजी में बुलंद हो रही हो, रोजनबेरी के मुताबिक वो काबिल रश्क मेयार ज़िंदगी का आदी बन जाता है। और अगर ऐसे घरानों की आमदनी गिर जाए तो वो साबका बचतों के बल बूते पर अपना मेयार ज़िंदगी बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। बस मौजूदा आमदनी के साथ साथ साबका आमदनी भी तफ़ाइल सर्फ को मुतय्यन करने वाला एक अहम आमिल है। रोजनबेरी दोनों निस्बती और साबका आमदनी के नज़रियात पर इन्हिसार करता है। रोजनबेरी दोनों को बिहेवियर्स को लेकर चलता है, रिलेटिव इनकम के ऊपर भी और प्रीवियस इनकम या पास्ट इनकम के ऊपर भी। तो उसने ये कहा कि जब सारिफ का जो कंजम्पशन पैटर्न है, जो सर्फ का मयार है, उसका इन्हिसार एक तो निस्बती आमदनी के ऊपर होता है कि वो आमदनी, निस्बती आमदनी से मुराद क्या है? वो आमदनी जो कि उसके पीयर ग्रुप के, उसके सोशल सेटअप के ऊपर इन्हिसार कर रही होती है। और उसके अलावा साबका आमदनी के ऊपर भी होता है कि अगर एक दफ़ा वो हाईएस्ट और पीक लेवल ऑफ इनकम के मुताबिक कंजम्पशन करने लगता है तो उससे नीचे की आमदनी के खर्च के साथ फिर वो सेट नहीं हो सकता। तो ज़्यादा जामे और वाज़ेह अल्फाज में ये कहा जाता है कि सारिफ का जो सर्फ है वो इर्रिवर्सिबल होता है। इसको वो रिचर्ड इफ़ेक्ट कह रहा होता है। रिचर्ड इफ़ेक्ट का क्या मतलब होता है कि जब आमदनी बढ़ेगी तो सर्फ बढ़ेगा, लेकिन जब आमदनी कम होगी तो वो अपनी प्रीवियस इनकम्स को देखते हुए अपनी जो कंजम्पशन है उसको कम नहीं कर सकेगा। दिस इज़ नोन एज द रिचर्ड इफ़ेक्ट। इसको रिचर्ड इफ़ेक्ट कहते हैं। इस नज़रिए की बुनियाद इस नफ्सियाती मफरूज़े पर रखी गई है जिसके मुताबिक ये दलील दी जाती है कि किसी ख़ानदान के लिए एक बुलंद मयार ज़िंदगी से अखराजात को कम करना मुश्किल हो जाता है बनिस्बत इस फैमिली से जिसको पहली दफ़ा ही खर्च करने से बाज रखा जाए। एक फैमिली जो हायर इनकम ग्रुप के अंदर रहने की आदी हो जाती है, उसका जो कंजम्पशन पैटर्न है उसको रिवर्स नहीं किया जाता, बजाय इसके कि वो फैमिली जिसको हम अभी इस एटीट्यूड के अंदर लाते ही नहीं है, जिसको हम अभी हायर इनकम ग्रुप के अंदर जाने ही नहीं देते, तो वो आसानी से अपने कंजम्पशन को कम कर लेता है। लेकिन अगर एक कंज्यूमर अपनी इनकम को इनकम के मुताबिक कंजम्पशन को बढ़ा चुका है तो फिर वो उसको रिवर्स नहीं कर सकता। इस वाले थ्योरी को, या जो इसने पॉइंट देने की कोशिश की है, इसको हम इस वाले ग्राफ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस के ऊपर डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम शो की गई है और इसमें वाई इनकम के ऊपर कंज्यूमर कंजम्पशन, द शॉर्ट पीरियड कंजम्पशन एंड द लॉन्ग पीरियड कंजम्पशन। आप इस ग्राफ को देखें, गौर करें तो आपको पता चलेगा 45 डिग्री हेल्पिंग लाइन, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। 45 डिग्री हेल्पिंग लाइन विल रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। इसके साथ ही 45 डिग्री हेल्पिंग लाइन के साथ LRC, जिसको लॉन्ग रन कंजम्पशन कहा जाता है, ठीक है जी। और SRC क्या है? शॉर्ट रन कंजम्पशन, अरसा तवील की सर्फ और अरसा कलील की सर्फ।
अब अगर पॉइंट ए को हम देखते हैं, पॉइंट ए के ऊपर लॉन्ग पीरियड कंजम्पशन और शॉर्ट पीरियड कंजम्पशन दोनों बराबर हैं. लेट्स सपोज एट डिस्पोजेबल इनकम YD1, जब कंज्यूमर की इनकम YD1 है तो लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड कंजम्पशन बराबर हैं. लेट्स एज्यूम. अब क्या होता है, डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है फ्रॉम YD1 टू YD2. अब कंज्यूमर के पास इनकम कम होगी. अब ये बात इसमें आ जाती है, जो कंज्यूमर देखिए अब मूव करेगा ना, जो अपनी कंजम्पशन को कम करेगा वो शॉर्ट पीरियड कंजम्पशन कर्व के ऊपर करेगा, और कंजम्पशन कम होते होते ए से मूव बैक करते हुए, देखिए ये बैक एरोज डले हुए हैं, इसे मूव करते करते वो डी पॉइंट के ऊपर आ जाएगा, और वो चेंज आ रही है शॉर्ट पीरियड कंजम्पशन के ऊपर, अरसा कलील के ख़त के ऊपर. देखिए लॉन्ग पीरियड कंजम्पशन के ऊपर नहीं आ रही. इसका क्या मतलब हुआ कि फ़र्ज़ करें एक हायर इनकम ग्रुप के अंदर कंज्यूमर रहना शुरू कर देता है, ठीक है, और उसके बाद उसकी कंजम्पशन कम हो जाती है, तो वो उस कम हुई हुई कंजम्पशन को शॉर्ट पीरियड के अंदर सेट करने की कोशिश करता है. लॉन्ग पीरियड के अंदर वो अपनी कंजम्पशन को कम नहीं करना चाहता. इसलिए हम कहेंगे व्हाट इज़ द base given by James Dusenberry. James Dusenberry describes that consumers' consumption depend upon the two types of the theories, the relative income hypothesis and the previous or the past income hypothesis. The consumption of the consumer depends upon the income of the peer group, the society, the community in which the consumer is living, and consumers' past income. इफ़ यू वॉन्ट टू क्रिटिकली एनालिसिस दिस थ्योरी, इस नज़रिए का अगर हम तनकीदी जायज़ा लेना चाहें तो बहुत सारे माहिरीन मुआशियात ने इसमें खामियां बयान की हैं. ये क्या खामियां हैं? ये नज़रिया इस बात की वजाहत करता है कि मजमूई आमदनी में इजाफे से सरफ़ी खर्च में एक ख़ास तनासब से इजाफ़ा होता है, चाहे आमदनी में इजाफ़ा कम निस्बत से हो या ज़्यादा निस्बत से हो. ठीक है, कि जब आमदनी में इजाफ़ा हो जाता है तो उसकी वजह से जो सर्फ में इजाफ़ा होता है वो एक ख़ास निस्बत से होता है. अगर तेज़ी से आमदनी बढ़ी है तो आमदनी में कमी उतनी तेज़ी से नहीं हो रही होगी. दूसरी बात क्या है कि इस नज़रिए के मुताबिक एक सारिफ का ख़र्च इरिवर्सिबल है, नाकाबिले वापसी है. अगर आमदनी बढ़ने से ख़र्च का मयार बढ़ गया है, हम एक ख़ास ज़िंदगी के आदी हो चुके हैं, तो हम उसको कम नहीं कर सकेंगे. इस नज़रिए के मुताबिक जब मैशत में सर्द बाज़ारी की लहर आती है और आमदनी में कमी होती है तो सरफ़ी खर्च में कमी ज़रूर होती है, लेकिन बाज़ मुशाहिदात ऐसे भी हैं कि आमदनी कम होने के बावजूद सरफ़ी खर्च में इजाफ़ा हुआ. ठीक है, ज़रूरी नहीं होता. तो ये फिर वही बात आ जाती है कि कंज्यूमर्स कंजम्पशन इज़ इर्रिवर्सिबल. माइकल एवंस के मुताबिक सारिफ का रवैया मुकम्मल तौर पर इरिवर्सिबल नहीं है. वक्त के साथ साथ, यानी अगर फ़र्ज़ करें कंज्यूमर एक ख़ास लिविंग स्टैंडर्ड का आदी हो गया है, ठीक है, आमदनी कम होती है, अब कंज्यूमर फौरी तौर पर अपनी कंजम्पशन को ज़ीरो पर नहीं लेकर जाएगा. स्लोली उसको आहिस्ता आहिस्ता इस बात का अंदाज़ा होगा कि इस इनकम के अंदर उसका ये कंजम्पशन लेवल नहीं रखा जा सकता, इसलिए वो स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता करते हुए अपने ख़र्च के मयार को कम कर रहा होता है. इसलिए एवंस का ये कहना था कि कम्प्लीटली इरिवर्सिबल नहीं होता बट स्लोली इरिवर्सिबल होता है कंज्यूमर्स का बिहेवियर. अगर 2-3 महीने मुस्तकिल उसकी आमदनी कम होती रहती है, उसको आमदनी नहीं हासिल हो पाती, तो फिर वो बैकवर्ड अपनी कंजम्पशन को मूव कर देता है. उसके अलावा ये नज़रिया इन अहम अवामिल को नज़रअंदाज कर देता है जो कि सारिफ के ख़र्च पर असरानंदाज होते हैं. मसलन असासे, नई अशिया, सारफीन की दस्तयाबी, उम्र में तब्दीली वगैरह. देयर आर मैनी अदर फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द कंज्यूमर्स बिहेवियर रिगार्डिंग द कंजम्पशंस. दीज आर स्पेशली द एसेट्स और द प्रॉपर्टी ऑफ द कंज्यूमर्स. ठीक है, ये ऐसा फैक्टर होता है कि अगर इसकी कंज्यूमर की इनकम कम भी हो जाती है बट इफ़ ही इज़ हैविंग सम टाइम ऑफ एसेट्स और एक्स्ट्रा इनकम, तो वो क्या करेगा कि वो अपने उस कंजम्पशन को उस एक्स्ट्रा इनकम से पूरा कर लेगा, बजाय इसके कि वो मुकम्मल तौर पर अपनी कंजम्पशन को फ़ौरन रिवर्स करे. वो अपने कुछ अदर फैक्टर्स जो कि उसके कंजम्पशन को इफ़ेक्ट कर सकते हैं वो उनको यूटिलाइज़ कर लेते हैं. जॉर्ज कॉटना के मुताबिक एम्पिरिकल स्टडीज़ शोज़ कि आमदनी के बारे में तवक्कुआत और असासे के ज़िम्न में रवैये सरफ़ी खर्च के सिलसिले में नुमाइशी असर के मुकाबले में ज़्यादा
اثر انداز ہو رہے تھے. یہ کہا کہ جو یہ ادر فیکٹرز ہم لوگوں نے دیکھے ہیں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں کنزیومر کی کنزمپشن کو افیکٹ کرنے کے لیے. بٹ ود دا اسٹڈی وی کین سے دیٹ دس تھیوری از مور ریئلسٹک, مور پریکٹیکل. تو اس طرح سے جو جیمس سیزلسبیریز relative income hypothesis is the practical theory regarding the consumption function. آج کا لیکچر ہمارا یہیں تھا کہ ہم باقی نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو.